Today our discussion from Nectar of Devotion. We'll discuss chapter 17. We have discussed, na? 16. 17. 15. Chapter 18 will be discussing. कल हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे. So Rupa Goswami next describe the characteristic of a person. Character of one in ecstatic love. जब भगवान का ecstatic love में रहता है उसका कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो उसमें कल हम डिस्कस किए थे रफली. दोबारा इसको डिस्कस करते हैं. पहले फर्स्ट नंबर में ही इज ऑलवेज एंक्सियस टू यूटिलाइज टाइम इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड. भगवान का सेवा में सारे समय को लगाता है. ही इज नॉट आइडल, डजंट लाइक टू बी आइडल एंड wants always service 24 hours a day without deviation. तो अभ्यर्थ कालोत्तम. सेकंड, he is reserved and perseverant. He is not disturbed in any situation. उसका मतलब है he is always detached from all material attraction. से कोई भौतिक आसक्ति से वो दूर में रहता है. Does not long for any material respect in return of his activity. कुछ भी कर्म करते हुए उसका मेटेरियल रिजल्ट कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. 5, always certain that Krishna will bestow his mercy upon him. अवश्य रक्षिबे कृष्णा, विश्वास पालना. 6, very eager to serve the Lord faithfully. And 7, much attached to the chanting of the holy names of the Lord. And भगवान का नाम में सबसे में नाम है रुचि. And he is always eager to describe transcendental qualities of the Lord. भगवान का नाम गुण, भगवान का गुणाख्यान करने में लगा रहते हैं. एंड ही इज वेरी प्लीज टू लिव इन ए प्लेस, सॉलिटरी प्लेस, या जो जहाँ पे भगवान का धाम में वास करने के लिए चाहते हैं. वन बाय वन डिस्कशन. यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम पहला जो पार्ट है. एक एन ऑनरली डिवोटी हु हैज डिप्लॉयड ecstatic love for Krishna is always engaging his words in reciting prayers to the Lord. Within the mind, he is always thinking of Krishna, and with his body, he either offers obeisances by bowing down before the deity or engages in some other service. During the ecstatic activities, he sometimes sheds tears. In this way, his whole life is engaged in the service of Lord with not a moment wasted on any other engagement. भगवान का तो भगवान का always utilize the time भगवान का सेवा में 24 hours a day without wasting any moment. ये पहला क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक. परसिवियरेंस में अनडिस्टर्ब इन विद डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस सिचुएशन में अनडिस्टर्ब रहता है, इसको बोलते हैं परसिवियरेंस. जैसे श्रीमद् भागवतम में दिया गया परीक्षित महाराज, उनका डेथ टाइम आ गया, 7 days डेथ है. तो माइंडर ब्राह्मण, यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट द टाइम मी एज योर personal servant, surrendered servant. I have come to the bank of Ganges just to devote my heart and soul onto the lotus feet of Lord Krishna. So please bless me that Mother Ganges may also be pleased with me. Let the curse of the Brahmana's son fall upon me. I don't mind. ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं. I only request that at the last moment of my life, all of you will kindly chant the holy name of Vishnu so that I may realize his transcendental qualities. तो भक्त का डिजायर देखिए, ये मेरे को जितना भी मृत्यु आने दीजिए, टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना टाइम है उतना टाइम भगवान का सेवा में चिंतन में रहना है. और हमारा पारिपार्श्विक वो लोग इकट्ठा हुए थे, बोले सबको बोल रहे हैं आप भी चैंटिंग करते रहिए, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते रहिए, सो दैट मैं जैसे उनको रियलाइज कर सकूं, उनको याद कर सकूं. दिस एग्जाम्पल ऑफ महाराज परीक्षित बिहेवियर, he is remaining patient even at the last point of his life. His undisturbed condition of mind is an example of reservation. This is one of the characteristics of a devotee who has developed ecstatic love for Krishna. So ये detachment. The senses are always desiring sense enjoyment, but when a devotee develops the transcendental love for Krishna, the senses are no longer attracted by material desires, detached. तो भौतिक सेंस एंजॉयमेंट से दूर रहता है.
बिकॉज कृष्ण का सेवा में माइंड को एंगेज रहता है, तो भौतिक आसक्ति नहीं रहता है। भागवत में किंग भरत के बारे में लिखा गया है, भरत राजा, एम्पर भरत वाज सो अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा दैट इवन इन यूथफुल लाइफ, जौवन का टाइम में भी, ही गेव अप ऑल काइंड्स ऑफ अटैचमेंट्स टू फैमिली, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, किंगडम एक्सेट्रा, एज दो दे आर अनटचेबल टूल्स। जैसे विष्ठा जैसे है, ऐसे छोड़ के वो राजकार्य और ये सब था, शशांक उनका टाइम में कुछ किंगडम में, राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी वो छोड़ के यंग एज में छोड़ के सेल्फ रिलेशन के लिए जंगल चले गए थे। कैसे छोड़ दिए न, जैसे एक हमारे हम विष्ठा को त्याग करते हैं, तो जस्ट लाइक ए टू स्टूल, कोई दोबारा देखता नहीं है, उसी टाइप का उसको छोड़ के चले गए। Emperor Bharata provides a typical example of detachment. He had everything enjoyable in the material world, but he left it. This means that detachment does not mean artificially keeping oneself aloof and apart from the allurements of attachment. Even in the presence of such allurements, if one can remain unattracted by material attachments, he is called detached. In the beginning, of course, a neophyte devotee must try to keep himself apart from all kinds of alluring attachments. But the real position of a mature devotee is that even in the presence of all allurements, he is not at all attracted. This is actual criteria of detachment. इसका यहाँ पे प्रपात का जो है यहाँ पे कहने का मतलब है, कभी कभी हमारा पास में कुछ नहीं है, इसलिए हम अटैच नहीं है, लेकिन हमारे पास में सारे मेटेरियल चीज रहते हुए भी हम उससे अगर डिटैच रहते हैं, तब दैट इज द रियल टेस्ट। इसलिए बोला जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल वन पर्सन, मेरा ये फेवरेट एग्जांपल है, वन पर्सन इज ए टॉप मोस्ट पोजीशन में है, कंपनी का सीईओ है या बड़ा पोजीशन में है, या एक बड़ा पोजीशन में है, मिनिस्टर है, तो लेकिन उसका पास में रास्ता है करप्शन करने का, लेकिन वो करप्शन नहीं करता है। दूसरा एक पियोन है, वो उसका करप्शन का रास्ता नहीं है, लेकिन वो करता नहीं है, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि पियोन इज मोर डिटैच्ड, बिकॉज ही डजंट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग डूइंग करप्शन। तो इसीलिए उसका अगर करप्शन का टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो कर भी सकता है। तो लेकिन इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल एल्योरमेंट्स, सारे चीज एल्योरमेंट में अगर जो भी है उसमें डिटैच रहेंगे। Pridelessness. When a devotee, in spite of possessing all qualities of pure realization, is not proud of his position, is called prideless. अगर सारे उसका सारे बहुत सारा गुड क्वालिटी है, बहुत क्वालिटी है, बट फिर भी वो प्राइडलेस है कि जानता है मेरा क्वालिटी कुछ नहीं है, ये सारे भगवान का है, गुरुदेव का है। So in the Padma Purana, it is stated that King Bhagirath, who was the emperor of above all other kings, yet he developed such ecstatic love for Krishna that he became mendicant. A mendicant मैंने भिखारी हो गया, and went out begging even to the homes of his political enemies and untouchables. He was so humble that he respectfully bowed down before them. There are many similar instances in the history of India. Even very recently, about 200 years ago or less, one big landlord noted Lal Babu, a Calcutta का landholder, became a Vaishnava and lived in Vrindavan. He was also begging from door to door, even at the homes of his political enemies. Begging involves being ready to be insulted by persons to whose home one has come. That is natural, but one has to tolerate such insults for the sake of Krishna. The devotee of Krishna can accept any position in his service of Krishna, in the service of Krishna. तो लाल बाबू का ये स्टोरी है, ये तो ये एक लैंड लॉर्ड थे कलकत्ता में, तो ये बाद में उसका डिटैचमेंट हो गया, वो छोड़ के चले गए वृंदावन। तो वृंदावन में रहते हुए ये वहाँ पे जो इनको टीचिंग ये मिला कि ये जाके भिक्षा मांगेंगे। इतना बड़ा लैंड लॉर्ड थे, तो भगवान के लिए भिक्षा करेंगे, मंदिर करना था इनको, तो अपना पैसा नहीं लगाना है। वो बोले कि एक मंदिर बनाना है उनका। एक स्पिरिचुअल पर्सन के पास में गए थे, तो उन वो बोले थे कि ठीक है आप एक मंदिर बनाओ, लेकिन अपना जो पैसा नहीं लगाना है। वो तो छोड़ के चला आए थे, फिर भी बोले अब वो पैसा कुछ नहीं लगाना।
आप भिक्षा करके पूरा लगाना। और उसके उस टाइम में वहाँ पे इनका एक पॉलिटिकल राइवल, मतलब इनका राइवल एक थे, फिर उनका घर में भी गए थे भिक्षा करने के लिए सबसे भी, और वो बोले उनसे ही जाके भी पहले भिक्षा करना है। तो इस टाइप का लाल बाबू जो है, ये जो भक्त वैष्णव बने हैं। एंड इसलिए हम लोग को बोला जाता है बेगिंग करो, बेगिंग, कृष्णा के लिए भिक्षा मांगो। हम लोग तो हो सकता है कि बड़ा मंदिर मायापुर में बन रहा है, तो अम्बरीश प्रभु, हिज ग्रेस अम्बरीश प्रभु जो शिला प्रभुपाद डिसाइपल है, वो फोर्ड कंपनी का मालिक है, तो वो चाहते अकेला चाहने से भी पूरा मंदिर बना सकते हैं। लेकिन ही हैज डोनेट मेजर पर्सन, बट ही हैज केप्ट समथिंग फॉर अदर्स ऑल्सो। क्योंकि अगर सारे वो दे देंगे, सारे जितना उनका भी स्वीकृति सारे से वो ले जाएंगे, तो फिर दूसरे लोग को कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए वो दूसरा लोग को भी एनगेज करते हैं कि डोनेशन दीजिए, सो दैट आप भगवान का मंदिर का कार्य में आप डोनेशन दीजिए, चैरिटी दीजिए, तो आपका, नहीं तो वो अकेला भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हो सकता है कि एक कहीं पे भी हम, जैसे अभी मालकानगिरी का बोल रहे हैं, बुर्ला में ऐसे भी भक्त है, वो पूरा पैसा अकेला दे सकते हैं, अकेला दे सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले की हो सकता है कि हम लोग उनका पास में पहुंच नहीं पा रहे हैं। दूसरा यह है कि वो अकेला दे देंगे, तो फिर दूसरा के लिए चांस नहीं रहेगा वहाँ पे सेवा करने का मौका। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो डोनेशन है उसका चैरिटी से एक्चुअली उनका वहाँ पे कुछ भगवान का सेवा में उनको भागीदारी बनना चांस मिला। तो इसलिए सबको चांस दिया जाता है, नहीं तो उतना बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। एक एक अकेला लोग सेवा सब कर सकते हैं, बहुत सारा धनी व्यक्ति है वो कर सकते हैं। लेकिन वो भी भक्त जानते हैं कि अगर हम अकेला सेवा कर दिया इसका, तो दूसरा लोग उसमें कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल इज फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जैसे बोले लाल बाबू का, तो वो तो अपना पैसा भी लगा सकते हैं, वो भिक्षा करने के लिए क्यों जा रहे हैं। तो उसमें इनका जो भिक्षा करते हैं उनको प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, हो सकता है कि जिसके पास में जाएगा, ठीक है न, वो जाएगा तो उसको गाली भी दे सकता है, उसका मुख का सामने में दरवाजा को बंद कर देंगे। हाँ, तो ये सब लांछना भगवान के लिए अगर ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, तो उसका ह्यूमिलिटी बढ़ेगा और अपना जो गर्व है वो कम हो जाएगा। तो जानेगा कि हमको भिक्षा करना है भगवान के लिए, तो हम लोग जान रेडी रहना पड़ेगा। भिक्षा करेंगे, 50 आदमी से 1-2 आदमी भिक्षा देंगे, दूसरा लोग रिटर्न कर देंगे, नहीं देंगे कुछ भिक्षा। तो हमारा उसी से हमको पता चलेगा जी हमारा रियल पोजीशन हमको क्या है, उस पोजीशन में आना है। तो जो शिवाजी थे, शिवाजी मराठा, महाराष्ट्र का शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, तो उनका गुरु रामदास थे। तो शिवाजी उतना बड़ा छत्रपति है, मतलब उनका राज्य में उस एरिया में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इन द मीन टाइम उनका फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो रहा था लोगों का, शिवाजी को पता नहीं था। तो शिवाजी ने, क्योंकि वो खबर नहीं रखे थे, तो इसीलिए गुरु रामदास उनका जो गुरु थे, एक दिन उनका घर में आके पहुंचे पैलेस में, और एक भिक्षा का पात्र लेके पहुंचे थे। तो उस टाइम में फिर वो बोला कि मैंने भिक्षा लेने के कोई आदमी आए हैं बोल के शिवाजी को खबर मिला। तो शिवाजी जब आके देखते हैं कि भिक्षा लेने के लिए हमारा राज्य में कौन भिक्षा ले मांग रहा है, इसे सोचे थे, तो देखते हैं कि गुरु रामदास है, भिक्षा थाली लेके खड़े हैं। तो शिवाजी ने तुरंत उनको प्रणाम करके बोले, गुरुदेव आप भिक्षा कर रहे हैं, आप बोल देते तो मैं आपका घर में सब कुछ पहुंचा देता, आप फिर भिक्षा करने के लिए मेरा घर में आ रहे हैं पैलेस में, ये क्या बात है। तो मैं सारे भिक्षा दे दूंगा, मैं आप भिक्षा मत करिए, मैं भिक्षा करके दूंगा। तो मतलब ही वाज टेलिंग कि ठीक है आप क्यों भिक्षा कर रहे हैं, नहीं ठीक है, मैं तुमसे अगर भिक्षा तुम मेरे को देना चाहते हो, तुम जाओ मेरा ये भिक्षा थाली लेके जाओ, आपका, हाँ, 10 घर में या 15 घर में, जितना भी घर में जाके भिक्षा करके, तुम भिक्षा करके मेरे को दे के लेके दो। तो शिवाजी तो इतना बड़ा सम्राट है, तो इसका बाद में उनको भिक्षा करना है। तो यस, सो शिवाजी वाज नॉट हेजिटेटिंग। तो गुरुदेव का बात है, तो इसलिए वो
बोले मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगा, तुम दूसरा से भिक्षा करके दो मेरे को अगर चाहते हो। उसके बाद में वो भिक्षा करने के गए, तभी उनको पता चला लोगों का पक्ष में भिक्षा देने के लिए भी नहीं था। तो देन ओनली ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि उनका जो लोग थे उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, राज्य में बहुत चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन उनका पास में था। तो गुरु रामदास ने ये पोजीशन को उनको इन्फॉर्म करने के लिए, जनाने के लिए, तो इसलिए उनको बोले कि आप जाके खुद भिक्षा करके लाओ। तो इसलिए एक तो उनका पोजीशन डाउन हुआ कि ही बिकम एक इतना बड़ा सम्राट है, वो जाके घर घर में भिक्षा करेंगे। तो गुरु रामदास वो शिक्षा दिया उनको कि भिक्षा करो। भिक्षा करने से कितना फायदा हुआ उनका, एक तो वो हम्बल बने, और दूसरा बने कि पता चला कि रियलिटी क्या है। हाँ, मेरा स्टेट में, मेरा एरिया में मैं जो राजा सम्राट हूँ, लोगों के पास में भिक्षा देने के लिए भी कुछ नहीं है। तो मतलब घर में, तो उस टाइम में तो पहले तो घर में लोग भिक्षा करते थे, लोग जाते थे भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मिलता था। कभी भी पहुंचिए लोगों को कुछ चावल है, कुछ भी होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स और जो भी पल्सेस जो भी है वो भिक्षा देते थे। तो इसीलिए ये प्राइडलेसनेस आएगा, इसमें लिखा गया प्राइडलेसनेस। जो गर्व है वो गर्व को नीचे करने के लिए भिक्षा करना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान के लिए भिक्षा करना है। तो जो आदमी भगवान के लिए भिक्षा करेगा वो प्राइडलेसनेस आएगा, वो गर्व अहंकार कम हो जाएगा, फिर बिकम नम्र होगा, और उसका मतलब ठोकर खाएगा। हम लोग इसीलिए बार बार बोलते हैं, कोई भी सेवा है, बैठ के जॉब करना, हमारे प्रभु इसलिए बैठ के जॉब करना हो सकता है इनिशियल डिवोटी के लिए अच्छा नहीं है। मिनिमम 16 वाला करने के बाद में टाइम है तो करिए, लेकिन ये सब सेवा करना है जिससे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तभी पता चलता है कि हम कितना बड़ा भक्त है, या भगवान क्या है, पोजीशन हमारा क्या पोजीशन है, तभी पता चलता है। तो हम लोग बोलते हैं हम तो हरिनाम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कहीं जाना नहीं है। इसलिए ये दूसरे टाइप का भी भिक्षा है, घर घर में जाके ये भिक्षा करते थे। कौन? नित्यानंद प्रभु एंड हरिदास ठाकुर। चेतना प्रभु बोले थे तो वो घर घर में जाते थे, नवद्वीप में जाके नॉक करते थे। फिर उसका बाद में वो जो दरवाजा खुलता था, देखते थे कोई खड़ा, कोई तो नहीं है, तो नीचे देखते थे कि नित्यानंद प्रभु एंड हरदास ठाकुर प्रणाम, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। अरे क्या हुआ? एक ऑर्डिनरी हाउस होल्डर के घर में जाते हैं, किसी का घर पे। तो देन वो लोग बोलते हैं क्या हुआ, आपको क्या चाहिए? ये मेरे को, हम लोग को यही भिक्षा चाहिए, हाँ, कि आप लोग हरे, आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु स्वयं कृष्ण बलराम, जो बलराम है वो नित्यानंद प्रभु है, ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम बलराम। तो देन वो, उसका मतलब भगवान सेवक, सेवक भगवान है। फिर भी वो जाके लोगों का घर में, घर घर में जाके न करके यही प्रणाम करते हुए यही भिक्षा मांगते थे। तो हम लोग को भी मांगना चाहिए। हम लोग कोई मांगते हैं किसी का पड़ोसी में जाके, आसपास में जाकर न करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भगवद गीता लीजिए, या एक बार हरिनाम कर दीजिए। हम लोग इसका चतरा प्रभु खुद बलराम जी नित्यानंद प्रभु दिखाई दिए कि कैसे भिक्षा करना चाहिए। लेकिन हम लोग बोलते हैं हमको तो नौकरी मिला है, पैसा गया, तो हम लोग अपना अपने आराम से रहेंगे, और कुछ नहीं, उसी में जितना होगा होगा। लेकिन हम भगवान के लिए भिक्षा करते हैं, हम लोग मेरे पास में है नहीं, क्या भगवान को देगा? नहीं है तो दूसरा से भिक्षा मांगना पड़ेगा। तो हम लोग इससे ही सीखना पड़ता है कि प्रभुपाद जैसे लाल बाबू का एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, बहुत कलकत्ता का लैंड लॉर्ड, एक लैंड होल्डर है, तो इस टाइप का बेगिंग करते हुए मंदिर बनाते हैं। तो इस टाइप का हम लोग को बेगिंग करके मंदिर का बनाना है। अपना जितना धन है ठीक है, उसके अलावा लोगों के पास में जाना है। छुट्टी दिन है, गुड फ्राइडे है, आज अच्छा फ्राइडे है, तो इसमें घर में बैठ के हरिनाम खाली करने से नहीं होगा। तो इसीलिए भक्तिसिंह सिस्टर को बोले अगर कर सकते हैं 24 आवर्स माइंड भगवान के पास में लग जाता है तो बहुत अच्छा है, उसमें इशू नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली चैंटिंग इज द एंड एंड चैंटिंग इज द मीन्स। बट हमारा मन लगता है क्या? अगर मन अगर भगवान का पास में लगता है हरिनाम करते हुए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 आवर्स चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन क्यों किस पोजिशन में है वही जानते हैं, गुरुदेव जानते हैं, कृष्ण जानते हैं। तो हम लोग, मैं मेरा बारे में सोचता हूँ तो हमारा चैंटिंग में लगता नहीं है मन, हम बहुत नीचे पोजीशन में है। इसीलिए हम लोग इसको, मैं ट्राई करता हूँ कि हम लोग बाहर बाहर जाके भगवान के लिए कुछ भिक्षा करो। मैंने उनका पास में जाओ, वो लोग बोलेगा मेरे पास में टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है, फिर भी
थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए, भिक्षा ऐसे करना पड़ेगा। एक बार हरिनाम करिए, एक बार कुछ नहीं करे तो हरिनाम करिए, एक किताब लीजिए तो बुक डिस्कशन करना है। ये सब बुक डिस्कशन करने से भी हम्बल ह्यूमिलिटी बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऑफिस ऑफिस में बड़ा ऑफिसर है, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, वही ऑफिस में रहते हैं, घर में आते हैं, जाना पड़ेगा बाहर में, जाइए, हम लोग सबको जाना है, जाके कोई बस स्टैंड में खड़ा होना है, कोई रेलवे स्टेशन में। हम देखते हैं कितना भक्त बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में कहीं भी जाइए किताब लेके खड़े हुए हैं। उनको मालूम नहीं है कोई लेगा या नहीं लेगा, नहीं लेगा कोई बात नहीं है, लेकिन वो जाते हैं। कोई पार्क में जाके खड़ा रहते हैं किताब लेके, कोई देखेगा कि यार आप लोग सो एंड सो प्रभु, आप क्या इधर क्या कर रहे हो, आप तो इतना बड़ा हाँ कंपनी का मालिक है। नहीं, मालिक भगवान है, हम कौन है, हम दास है। तो हम लोग इसीलिए दास का काम है भगवान का, भगवान के लिए भिक्षा करना, भगवान के लिए फिजिकल सेवा सब करना चाहिए। तो हमारा तभी हमारा प्राइडलेसनेस आएगा, ह्यूमिलिटी आएगा, हम लोग को भक्ति में बढ़ सकते हैं। और भगवान भी वही बोला कि हमारा बारे में जो प्रचार करता है उसको मेरा सबसे डियर फ्रेंड, डियर है, तो डियर मोस्ट है, इसलिए इसको करना चाहिए। ग्रेट होप, नेक्स्ट पॉइंट, strong conviction that one will certainly receive favor of the supreme personal godhead, in sanskrit called आशा बंध। आशा बंध, आशा बंध मीन्स होप है। आशा बंध मीन्स टू कंटिन्यू टू थिंक बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉलो द रूटीन प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस, आई एम श्योर दैट आई विल गो बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम। ये आशा बंध है, आशा ये होना चाहिए कि हम जैसे हम बट हम लोग क्या ट्राई करना है, फुल फ्लेज में मैक्सिमाइज करना है हमारा कैपेबिलिटी को भगवान का डिवोशन सर्विस के लिए। एंड ये भी आशा रखना चाहिए तो एक वन डे आई विल गो बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम। In this connection, one prayer by Rupa Goswami is sufficient to exemplify his hopefulness. He says, I have no love for Krishna, nor for the causes of developing love for Krishna. रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं, देखिए। तो हमारा पोजिशन में सोच रहा हूँ क्या है, आई हैव नो लव फॉर कृष्णा नॉर फॉर द कॉजेस ऑफ डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा, नेमली hearing and chanting, and the process of bhakti yoga by which one is always thinking of Krishna and is fixing his lotus feet in the heart, is also lacking in me. As far as for philosophical knowledge or pious works are concerned, I don't see any opportunity for me to execute such activities. But above all, I am not even born of a nice family. Therefore, मैंने जन्म ऐश्वर्य सुतश्री कुछ नहीं है। Therefore, I must simply pray to you, Gopinath, Gopijana Vallabha, Krishna, the maintainer and beloved of gopis. I simply wish and hope that somewhere or the other I may be able to approach your lotus feet, and this hope of giving me pain, because I think myself quite incompetent to approach that transcendental goal of life. This purport is that under this heading of Asa Bandha, one should continue to hope against hope, continue to hope against hope, that some way or other you will be able to approach the lotus feet of the Supreme Lord. भगवान का पास में हम अप्रोच करना है, कैसे भी हो भगवान का पाद पद्म को हम ग्रहण मिलना चाहिए, उसके लिए होप रखना पड़ेगा। होप कैसे आएगा, जब हम मैक्सिमाइज हमारा जितना कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी को फुल यूटिलाइज करके भगवान का सेवा करेंगे, तभी आशा बंध होगा। ईगरनेस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड सक्सेस, इसको बोलते हैं समुत्कंठा, समुत्कंठा, उत्कंठा, समुत्कंठा। When one is sufficiently eager to achieve success in devotional service, that eagerness is called samutkantha. This means complete eagerness. हम लोग लेजी होकर बैठना नहीं है, भक्ति में लेजी काम नहीं चलता, ईगर रहना पड़ेगा, कंप्लीट ईगर। Actually, this eagerness is the price for achieving success in Krishna consciousness. Everything for has some value, and one has to pay the value before obtaining or possessing it. हम लोग वही है सब, प्रभुपाद बहुत लाइन अच्छा लाइन लिखे हैं यहाँ पे कि एवरीथिंग हैज वैल्यू, एंड उसके लिए प्राइस कुछ देना पड़ेगा। एवरीथिंग हैज सम वैल्यू, एंड उसको पाने के लिए पे दी वैल्यू बिफोर ऑब्टेनिंग एंड और पोजेसिंग इट। कृष्णा कॉन्शियसनेस, it is stated in Vedic literature that to purchase the most valuable thing, the Krishna consciousness, one has to develop intense eagerness for achieving the success. Eagerness, lowlyam. What is the paying? What is the payment required?
भक्ति करने के लिए पेमेंट क्या चाहिए? ये पेमेंट ये चाहिए, लोलियम means greed or eagerness, intense eagerness for achieving that success. This intense eagerness is very nicely expressed by Birlamal Thakur in his book Krishna Karnamrita. He says, I am eagerly waiting to see that boy of Vrindavan, whose bodily beauty is captivating the whole universe, whose eyes are always bound by black eyebrows and expanded like lotus petals, and who is always eagerly glancing over his devotees and therefore moving slightly here and there. His eyes are always moist, his lips are colored like copper, and through those lips there comes a sound, vibration, which drives one madder than a mad elephant. I want so much to see him at Vrindavan. ये बिलमल ठाकुर बोल रहे हैं। भगवान के लिए कितना व्याकुलता है जो ये करने से, कि मैं आपको जरूर प्राप्त होऊंगा। और उस टाइप का भगवान का पोजीशन कैसे, वो उनका लिप्स कैसे है, आइज कैसे है, सारे उनका रूपरेखा एंड होठ कैसे हैं, एंड उनका साउंड वाइब्रेशन वंशी वादन कर रहे हैं कैसे है। तो वो वंशी में एक आदमी पागल हो जाएगा, लिख रहे हैं, पागल होके आई वांट सो मच टू सी हिम एट वृंदावन। तो इसीलिए इस टाइप का पोजीशन है। इन द सेम कृष्ण कर्णामृत there is another statement about chanting of Radharani. It is said by one of the associates of Radharani, O Lord Govinda, the girl who is daughter of King Vrishabhanu is now shedding tears and she is anxiously chanting your holy name, Krishna, Krishna, the Krishna, Krishna. This is called attachment to chanting holy name of the Lord. Eagerness to मैंने भगवान का नाम लेना, eagerness to describe the Lord's transcendental qualities, eagerness. तो अभी तक जो डिस्कस हुआ, कोई कुछ डाउट है?